A very good morning to all of you. So हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था कोलोराउस लॉ. लेट अस एक्सप्लेन इट अगेन एंड लेट अस रिवाइज इट कि हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी. The limiting molar conductivity of an electrolyte can be expressed as the sum of different contribution of its cation and anion. मतलब यहाँ पर क्या बात करी थी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो सेम चीज होती है. उसको एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है कि जो डिफरेंट कैटायन और एनायन से वो बना हुआ होता है उनके कंट्रीब्यूशन को अगर हम ऐड कर दें तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और उसी को ही हम कहते हैं क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर उस दिन करवाए थे, जैसे कि HCl का H प्लस एंड Cl माइनस की अगर हम लोग क्या करें, मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इन दोनों के कैटायन और एनायन को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया है. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन को हमने ऐड कर दिया है, राइट. तो इस तरीके से या तो हम लोग इस इधर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बोथ कैन बी रिटन. आपकी बुक में कभी ये वाला साइन दे रखा है, कभी ये वाला साइन दे रखा है. तो मेक श्योर कि आप कंफ्यूज ना हो, दोनों ही सेम है. ओके, नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल. NaCl का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी रिटन एज लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Na plus lambda infinite of Cl minus. Similarly, second example, Na2S will be written as 2Na plus and S2 minus. Na2S will be breaking down into Na plus of two molecules of Na plus ion and one anion that is S2 minus. तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी of Na2S at infinite dilution will be equal to 2 lambda infinite Na plus ion plus lambda infinite of S2 minus ion. Third example will be of BaCl2. BaCl2 will be breaking down into Ba2 plus ion and 2Cl minus ion. The method for representing it will be molar conductivity of BaCl2 at infinite dilution is equals to lambda infinite of Ba plus 2 lambda infinite of Cl minus ion. Third example, Al2SO4 whole thrice. Now how this will break up? This will break up into 2Al3 plus ion plus 3SO4 2 minus ion. Now how you will represent? Molar conductivity of Al2SO4 at infinite dilution will be equal to 2 lambda infinite of Al3 plus 3 lambda infinite of SO4 2 minus. Similarly, AlCl3, how will you represent? Molar conductivity of AlCl3 at infinite dilution will be equal to lambda infinite of Al3 plus 3 lambda infinite of Cl minus. So now you have been given a clear idea that how you will represent the molar conductivity of any salt at infinite dilution. Okay, so now you are ready to do some numerical question based on Kohlrausch law. Now we'll see one question based on the Kohlrausch law. किस तरीके से Kohlrausch law के question आते हैं. It is really easy, but if you know the basics, you can do it. Otherwise, you'll feel what it is. Okay. So we have to determine the cap naught M or cap infinite M of Al2SO4 3 given lambda infinite of Al3 plus is 150 Simon centimeter square per mole. Lambda infinite of SO4 2 minus is 160 Simon centimeter square per mole. So what you have to determine? We have to determine cap naught M, that is cap infinite M, both of them is molar conductivity of Al2SO4 whole thrice at infinite dilution. You can be represented as not also, you can also represent it as this infinite sign also. Both of them will be same.
So what you have to determine? We have to determine the molar conductivity of Al2SO4 whole thrice at infinite dilution. Okay, so first we will be seeing the reaction. Al2SO4 whole thrice जो है वो किस में टूटेगा? It will break down into 2Al3 plus ion plus 3SO4 2 minus ion. Okay, so lambda infinite of Al3 plus is also given and SO4 2 minus is also given. So we all know that from Kohlrausch law we can easily calculate the molar conductivity of any salt at infinite dilution. Okay, simply by what? Simply by addition of the different contribution of its cation and anion, and the values are given in the question itself. So Al3 plus की कितनी value है? 150 and SO4 की कितनी value है? 160. Okay, so 2 into, because two molecules here of Al3 plus ion. Okay, so 2 into 150 plus 3 into 160. So on adding both of these and multiplying it, we'll get 780 Simon centimeter square per mole. So this is the molar conductivity of Al2SO4 whole thrice at infinite dilution. Application of Kohlrausch law. First application. With the help of this law, molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution can be calculated. तो weak electrolyte होता है उसका जो molar conductivity होता है वो calculate किया जा सकता है. हमें पता है CH3COOH क्या है? एक तरीके का weak electrolyte. तो if we want to determine the molar conductivity of acetic acid at infinite dilution, then it can be determined with the help of strong electrolytes such as NaCl, HCl, KCl, CH3, COOK, etc. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो है वो मोलर कंडक्टिविटी हो तो. एग्जाम्पल कि अगर मैंने यहाँ पोटेशियम एसीटेट की जो रिएक्शन है वो HCl से करवाई तो क्या मिलेगा मुझे? एसिटिक एसिड एंड KCl. अब अगर सोचने की बात है कि मैं इन दोनों के मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दूं और इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मुझे एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगा. ओके, तो इसको अगर मैं एक साइड पे रखूं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मुझे निकालना है, मुझे क्या ऐड करना है? पोटेशियम एसीटेट को ऐड करना है HCl के साथ में और माइनस करना है KCl के साथ में. तो यही मैंने लिखा है एसिटिक एसिड प्लस HCl माइनस KCl मोलर कंडक्टिविटी. ओके, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता कर सकती हूँ अगर मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड आउट किया जा सकता है. So we'll be looking at one example based on this only. Lambda infinite for NaCl, HCl and sodium acetate are this respectively. Calculate cap infinity for CH3COOH. Okay, तो अब इसको किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो एसिटिक एसिड निकालने का जो इनकी मदद से कौन सी रिएक्शन होगी, तो अगर सोडियम एसीटेट का HCl के साथ में रिएक्शन करवाया तो मुझे क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड एंड क्या निकलेगा? NaCl. तो मैंने ऊपर भी यही किया था कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और वही मुझे चाहिए. तो कैप इनफाइनाइट या फिर कैप नॉट, ये दोनों एक ही चीज है, कुछ भी आप लिख सकते हो लेकिन हाँ लिखो सेम ही. जैसे मैंने अभी यहाँ 2 लिख दिया तो ये गलत है. ओके, तो मैंने यहाँ कैप इनफाइनाइट लिख दिया है, तो इसको भी मुझे कैप इनफाइनाइट ही करना पड़ेगा. ओके, तो अब इनकी वैल्यूज जो है क्या किया है? इन दोनों को ऐड कर दिया. तो CH3COONA प्लस HCl माइनस NaCl, इनकी वैल्यूज दी हुई है बिल्कुल 126.4
42.5 सॉरी 425.9 and 91.0। तो हमने ऐड कर दिया है किसको, सोडियम एसीटेट का 91, HCl का कितना 425.9 माइनस ऑफ NaCl का कितना 126.4। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आंसर क्या आ गया 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमाइंड। डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमाइंड। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट any concentration upon molar conductivity at infinite dilution। ओके, तो अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, एंड कैप सी एम क्या है यहाँ पर, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, एंड कैप इन्फिनिटी एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम लोग जो है वो डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहले वाली वीडियोस में हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो निकाला है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहाँ पर के क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, सी इज द कंसंट्रेशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Fourth application, the solubility of partially soluble salts like AgCl, BaSO4, PbSO4, etc. can also be calculated by this law। तो किसी का भी solubility and solubility product जो है वो calculate कर सकते हैं। अगर वो partially soluble salt हो तो उसका भी हम लोग कोलराउश लॉ की हेल्प से कर सकते हैं with the formula lambda infinite m is equals to k into 1000 upon solubility। और solubility निकालेंगे तो हम लोग lambda infinite m को नीचे लेके आ जाएंगे। तो S इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट m। यहाँ पर K क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, लैम्डा m क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। KSP क्या होता है, KSP होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो एक एग्जांपल पहले देखेंगे हम लोग, NaCl का फर्स्ट एग्जांपल ये देख लेते हैं हम लोग कि अगर NaCl जो है वो ब्रेक डाउन होता है Na और Cl में, तो हम लोग किस तरीके से KSP निकालेंगे या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमेशा सॉल्युबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है या फिर तरीका होता है कि S यहाँ पर आगे आ जाएगा, जो इधर आगे वाले मोल में होगा तो यहाँ पर क्या है 1 Na है तो 1S हो जाएगा 1S, और पावर में जो यहाँ पर है वही पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आयन आया है, एक आयन आया है, तो S का भी एक यहाँ पर ऊपर पावर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर Cl कितना है 1 है तो 1S हो जाएगा और पावर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आएगा, S इंटू S कितना होता है S एंड 1 प्लस 1 2, तो S स्क्वायर जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है NaCl का। अगर S की वैल्यू अगर मान लो अगर 5 दे दी गई हो या निकाल ली है हमने यहाँ से, तो उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 5 इंटू 5 कितना 25 निकल कर आ जाएगा इसका KSP, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वैसे ही अब AlOH होल थ्राइस का अपन देखते हैं, तो कितने Al3 प्लस आयन 1 है, यहाँ पर OH माइनस आयन कितना निकल कर आया है 3 निकल कर आया है। तो वही है कि हमें Al जो है वो आयन जो आगे आएगा वही ऊपर में भी आ जाएगा, राइट, एंड जो इधर आएगा वो उसकी पावर में भी आ जाएगा। तो 1S1 क्योंकि यहाँ पर 1 ही है ना, यहाँ पर OH कितने 3 है तो 3S ऊपर क्या आ जाएगा Q। तो यहाँ पर मैंने लिखा है S क्योंकि S की पावर 1 होगी तो S ही हो जाएगा, एंड यहाँ पर 3S और ऊपर क्या आ जाएगा Q। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या निकल कर आ जाएगा, 3 का जो क्यूब होता है कितना होता है 27, एंड S यहाँ पर S की पावर 1 है, यहाँ पर 3 है तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। तो KSP कितना निकल कर आया या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना निकल कर आया 27S4। अब अगर हमें S की वैल्यू यहाँ से पता कर लेते हैं या निकाल लेते हैं तो हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी आसानी से निकाल लेंगे। ओके, तो ये तरीका होता है
solubility and solubility product निकालने का। तो लास्ट एप्लीकेशन है, the ionic product of water can also be calculated, which is found to be 1.02 into 10 to the power minus 14। तो ionic product of water भी जो है वो कोलराउश लॉ की मदद से निकाला था। एंड वैसे तो डिस्क्रिप्टिव है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप बस वैल्यू याद रखो 1.02 into 10 to the power minus 14। एक न्यूमेरिकल देखिए आप लोग। The conductivity of a saturated solution of AgBr at 298 Kelvin is 8.5 into 10 to the power 7 Simon per centimeter if AgBr molar conductivity at infinite dilution is 140.0 Simon centimeter square per mole, then calculate the solubility and solubility product of AgBr। तो हमको क्या निकालना है, solubility निकालना है, उसके बाद में उसका solubility product निकालना है। तो solubility निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा ही है। solubility अगर इधर ले जाऊँ तो k into 1000 अपॉन लैम्डा नॉट m, वैल्यूज k की दे रखी है कितनी 8.5 into 10 to the power 7,000 एंड लैम्डा m की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी 140। ओके, तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 0.06 into 10 to the power minus 4। ये आ गया हमारा s मतलब सॉल्युबिलिटी। अब हमें निकालना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि AgBr जो है वो किस में टूटता है, Ag में एंड Br में, दोनों के एक एक मोल ही टूटे हैं। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया कि यहाँ पर 1 जो है क्योंकि Ag एक ही टूटा है, फिर S जो आगे होगा वो ऊपर भी हो जाएगा पावर में, है ना, इनटू दूसरा जो Br के लिए वो भी 1 ही है, S और 1 ही है। तो हमारे पास में क्या आ गया S 1 + 1 2, तो S स्क्वायर। S यहाँ पर हमने निकाला ही है 0.06 into 10 to the power minus 4। तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो बताना मुझे आंसर क्या आता है। तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी। ओके, आई होप कि तुम लोग फॉलो कर रहे हो सारे वीडियोस एंड प्लीज डोंट मिस एनी वीडियोस बिकॉज ईच वीडियो इज लिंक्ड टू वन अनदर। ओके, थैंक यू।